is a very small recapitulation about simple equation, that we have to study about unknown variables, unknown numbers. Okay, this is the unknown numbers which can be written in the form of x, y, z, a, b. We have also discussed about equation, how this sign of equality come between LHS and RHS, and the result of LHS is always equal to the RHS. If this is not equal, we can say the statement is not correct and this equations becomes inequalities. If this is not equal, we can say this equation is not satisfied. When there is inequalities, we can say this equation is not satisfied. Please remember small words, no? Satisfied. This equation, this is the short form of equation, is not satisfied. Satisfied. If you put the value of x and y in the given form, given equation, and the value of x does not make it equal to the RHS, so you can say this equation is not satisfied. Okay, now already we had done small questions, the very first questions, and these are the questions solved by you because I took all the feedbacks from you. I asked the question that if the value of this particular number is taken as 0, suppose here the value of x is equal to 0, then you have to write here at this point, you have to write it as 0, and 3 into 0, 3 into 0 minus 1 is equal to 0 minus 1 is equal to minus 1. But what is at the right hand side? 5. So this is not true. So you can write it as not. It's not correct part of equation. चलिए क्लियर है बच्चों, आगे आते हैं. We have also done some questions of second where we had found out the value of x and y. Now question number 3, write the mathematical expression for the following statement. Very important question, and I want to take help from all these questions by you ki how do you understand. See, read the question very properly. The sum of, the very first word is sum. सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब होता है जोड़ना. तो यहां बोल रहा है द सम ऑफ. अच्छा, जोड़ा हमेशा कोई दो नंबर में तो जाएगा, दो क्वांटिटी में तो जाएगा, तो किसको किसको हम जोड़ रहे हैं? ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब 2 टाइम्स एक्स एंड 4, और 4, यानी हम जो सम कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? 2 टाइम्स एक्स का और 4 का, और इसका रिजल्ट क्या है? 24. 2x plus 4 is equal to 24. So this is the answer of first A, 3A, क्वेश्चन 3A ये हो गया. इसी तरह से सेकंड हम पढ़ते हैं. जरा क्वेश्चन को रीड करने का तरीका मुझे आना चाहिए. आपको बिल्कुल ये ध्यान रहे कि हमने जैसे रीड किया है उसी तरह से आपको भी रीड करना है. इससे क्या होगा कि आपका एक्सप्रेशन एकदम क्लियर होगा. बेटा दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से पढ़ना है. 3, आधा आधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. देखिए 3, तो हमने यहां लिख दिया 3. अब बोला सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब 3 को घटाना है, फ्रॉम मतलब से, 3 को घटाना है, किससे घटाना है? 4x. हियर इट इज 4x. 3 को घटाना है 4x से एंड द रिजल्ट इज 9. So here is the question number B. So here it is 4x minus 3 is equal to 9. So you are knowing how this statement can be expressed as the equation form. Now taking, suppose here we are taking g. g क्या कह रहा है? 2 times 2x, 2x subtracted from 44. oh 44 से हम 2x को घटाएंगे. याद रखिएगा हमेशा अपने दिमाग में कभी भी ये चीज आप ना समझें कि 2x को किसी से घटाया नहीं जा सकता है. जो लिखा है हम वही लिखेंगे.
जो बोला है हम वही लिखेंगे, और गिव्स कितना है, इज कितना है 10, मीन्स इक्वल टू 10। 44 minus 2x is equal to 10. बिल्कुल यही होने वाला है हमारा, 44 माइनस 2x इज इक्वल टू 10। सेम जी हम लेंगे, हम यहाँ पे सम वर्ड को चेंज करके क्या कर दिया है, एडेड। तो जी के बाद हम एच लेंगे, और एडेड का मतलब हुआ सम। ऐड किसको किसको ऐड करना है, 4 टाइम्स जेड को, या 4 टाइम्स दिख रहा है जेड जैसा, तो जेड या एक्स या जो भी क्वांटिटी है हम उसी को ले लेंगे। तो 4 टाइम्स जेड, 7 plus 4z is equal to 37. अच्छा 7 इज एडेड टू 4z। तो यहां जो है आपके पास 4z, और सबसे पहले है 7 भी, तो 7 एंड 4z इज एडेड। इसके ऑर्डर को आप बदल सकते हो, 7 को पहले लिख सकते हो, 4z को बाद में लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एडिशन में आप a प्लस बी या 2 प्लस 8 को भी आप 10 बोलोगे, और 8 प्लस 2 को भी आप 10 ही बोलोगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? मैं समझता हूं कि आप लोगों का यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे आगे आते हैं। और इसमें से कोई डाउट आप लोगों का रह गया है? No, sir. No, sir. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पे क्या बोल रहा है, ऑलरेडी दिस इज एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और इसको बोल रहा है स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, स्टेटमेंट। तो हम लोग इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से लिखेंगे, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे कि आपको पता चले कि हम लोग एक ही इक्वेशन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 15। देखिए 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो यहां हम ऐसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट एक मैं लिख रहा हूं, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ 2p है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स p, 2 टाइम्स p एंड 5 इज 15। इस इज के जगह आप लिख सकते हो, 5p gives 15, ये भी हो सकता है ना? वेट करेंगे हम लोग देखेंगे, इज के जगह हम गिव्स भी लिख सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं 5 इज या 2p इज एडेड टू 2p। इन दोनों के नाम को आप बदल सकते हैं आगे पीछे, गिव्स या इज 15। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आपने एक बात जाना कि जब भी कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको उतने टाइम्स बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन के साइन को हम सम बोल सकते हैं, और एडेड भी बोल सकते हैं। इज इक्वल टू को हम इज कह सकते हैं, और गिव्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अगर कोई और बच्चा कहेगा कि सर मैंने तो ऐसे लिखा, 15 इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ 5 एंड 2p, क्या दिक्कत है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो, यू नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई वांट टू से कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करो, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। तो एक और क्वेश्चन में मैं लूंगा, इस स्टेटमेंट को भी मैं देखूंगा, तो मुझे कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए बच्चों? Sir, H number. चलिए हम लोग एच नंबर लेते हैं, एफ भी लेंगे और एच भी लेंगे। तो पहले हम एफ लेते हैं, उसके बाद एच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 21 is the result obtained when 3y is divided by 4, या when we get 21 if 3y is divided by 4, divided by 4। सिंपल, इस तरह से यहां भी कहेंगे हम
8 will be obtained when 8 is the sum of 2 and p divided by 2. 8 is the sum of 2 and p divided by 2. तो बच्चों छोटा वर्ड भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि we get 8 as a result of, थोड़ा बड़ा कर दिया स्टेटमेंट, as a result of sum of 2 and half of p. क्या? half of p. बच्चों p by 2 को हम लिख सकते हैं ना, half of p. क्या? we get it result of sum of 2 and half of p by 2. This is the expression. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So what I observe that you all are getting or being familiar with the statement and the form of the equation that is represented in the question number 4. Okay, clear? आगे आते हैं. Here is question number 5, and the question number 5 says set up an equation for the following cases. Set up an equation means here is the statement and you have to convert into equation. So now we are going to convert. Total number of students in the school is 656. 656 is the total result. The number of girls is 86, more than the number of boys. So let number of boys हमें लेना है कोई वेरिएबल में, x में, y में, z में, इस तरीके से. तो यहाँ x दिया हुआ भी है क्वेश्चन में कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज है x, और गर्ल्स के लिए लिख दिया है कि 86 लड़कियां ज्यादा है बच्चों से, लड़कों से. तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? x में, करेक्ट, x plus 86. X plus X 86 plus. Only it is x plus 86 if we write the number of girls. But Say 2x plus but 86. according to question, total students are this. According to question, number of boys plus number of girls. Number of boys is x and number of girls is x plus 86 is equal to 656. And then you can solve, you can write it as 2x plus 86 is equal to 656. Here it is in the form of equation. And if you want to find the values of x, find the number of boys and number of girls, you can solve this question to find. So here I am solving the question also. So to solve the question, we require to keep x as a subject. x को क्या करना होगा? अलग रखना होगा, अलग लिखना होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले जो 86 आ रहा है, उस 86 को हम दोनों साइड से माइनस करेंगे, LHS से भी और RHS से भी. हमारा मेन मकसद क्या है? इस x को अकेला रखना. और x को अकेला रखने के लिए हमें क्या करना होगा? LHS में भी 86 से माइनस कर देंगे, RHS से भी 86 से माइनस कर देंगे. तो LHS में अगर हम 86 माइनस करेंगे तब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2x. और 656 में जब हम 86 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 570. तो आप बताइए कि अगर 2 टाइम्स x 570 है तो एक बार x यानी कि नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? वेरी गुड. 570 divided by 2, it means 2, 8 and 5. ये हो जाएगा लड़कों की संख्या.
यानी नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया 285। तो फिर आप बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा 86 इसमें जोड़ना होगा यानी कि 371। और आप यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं कर सकते हो बच्चों, एकदम नहीं। आपको चेक कर लेना चाहिए ये दोनों को जोड़ के कि क्या बॉयज और गर्ल्स को जोड़ के हमारा 656 आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो हम कैलकुलेशन को रिपीट करेंगे, देखेंगे गलती कहाँ है, और आ जाता है तो हम संतोष करेंगे कि हमने सही बनाया। तो यू हैव टू ऐड द गिवन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये चीज आपको करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट।